welcome to the India's largest learning platform, which is Unacademy. This is Unacademy's channel, Unacademy 8. Let's crack CBSE 8. Okay. So here we will be today's topic is understanding laws. We are going to explain what do you understand by law किसने बनाया, who are the participants in this laws, who has who has brought so many effects on the laws, and what were the new laws that were famous, that were not so popular. So we will know about all these laws, and we will also understand that how the role of the constitution, the features of the constitution are being followed very finely. Okay, so before going any forward, let me introduce myself. This is Neha Kumari. I have done my graduation, post graduation from Nehu University. I have 1 year of experience in teaching in school, where I was teaching class 11th and 12th. The subjects that I was teaching there was accountancy and business studies. Basically, these are your senior secondary classes. Yes, I have taught senior secondary classes and senior classes subjects. Currently, I am pursuing B.Ed from IIMT University because I would not like to limit my knowledge to a certain extent. I love to explore new things. I love to communicate with the people, and I love to gain some new knowledge. So that is why I have joined B.Ed and also an academy, because with an academy I'm getting a chance, getting an opportunity for interacting with you guys, with so amazing guys, right? So this is an academy. Let me introduce an academy. An academy is the India's largest learning platform. Here we are providing you India's top educators, India's best educators who take uh, live classes on a regular basis. Then with the plus subscription you get access to unlimited live and recorded classes as well. You are very well known beforehand कि, with the subscription how you are able to get live classes and also the recorded classes which are available on the YouTube, है ना? So those, suppose you have missed it on the YouTube, so you can also see the recorded version in the app. So first thing first, Unacademy gives you a platform to interact with your best educators, with your top educators, or which educator, whichever you want. ठीक है, it depends upon you which educator do you want in that category. ऐसा भी है कि you can choose between multiple educators. ठीक है, इसकी भी क्लास कर ली, उसकी भी क्लास कर ली, फ्री का नॉलेज है, कहीं से भी उठा लो, है ना, डायलॉग है. So here, what do we give you? We give you live classes where you are able to interact with your educators. Okay, then these educators are clearing your doubts then and there. They are, आपको अपने doubts अपने तक रखने की जरूरत नहीं है. You are able to tell it. You are able to express your doubts to the educator then and there, है ना? तो as you can see that these particular people, these particular educators have already take live classes. Then prepare with the top educators of India. Yes, you know that these are the people, those are the educators, top educators of India of that category. वो लोग वहाँ पे आके आपको पढ़ा रहे हैं. They are explaining their subject. They are well versed in their subject. They have specialization in their subject, and as a result, you are in good hands. So what to worry about, right? So in plus subscription, what are you getting? You are getting India's best top educators, as I have already explained, interactive live classes with the educators, live tests and quizzes we organize on a regular basis, ताकि आपकी नॉलेज और एप्रीहेंड हो और इंक्रीज हो, और इसी के साथ आपको मजा भी आए. ऐसा ना हो कि पढ़ाई आपको बोझ लगे, है ना? दूसरी चीज, और एक चीज हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो है क्रिएटिव कॉर्नर. क्रिएटिव कॉर्नर में हम आपको बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर देते हैं. जो जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें हम आपको क्रिएटिव कॉर्नर पे देते हैं. सो आई विल टॉक अबाउट क्रिएटिव कॉर्नर इन द नेक्स्ट स्लाइड. Let me talk about one of the other benefit that you get by joining an academy is that your courses are well structured. Then in that टाइम फ्रेम आपका सब्जेक्ट खत्म भी हो रहा है, आपका कोर्स खत्म हो रहा है, एंड आप अपने एग्जाम से बहुत पहले ही प्रिपेयर्ड हैं. आपको पता है कि आपको एग्जाम को कैसे अपियर करना है, कितना टाइम देना है. सो यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट. यू जस्ट हैव टू डू वन
सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड एक्सेस। जब मन करे तब उठाकर ऐप देख लो कि कौन सी क्लास कब हुई। अगर आप मिस कर जाते हो तो आप वो क्लास वापस से देख सकते हो। ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव कॉर्नर। इन द क्रिएटिव कॉर्नर वी प्रोवाइड यू बियॉन्ड स्कूल सिलेबस, दैट इज यहाँ पे आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज ही नहीं, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होती है जब आप क्रिएटिव पे जाते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर पे जाते हैं। दैट इज द प्लस दैट यू गेट बाय जॉइनिंग एन अकेडमी, है ना। यहाँ पे आप यू कैन लर्न रोबोटिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंडियन हिस्ट्री थ्रू एजेस एंड एनी मैनी मोर। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है ना, उससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। Then entertainers corner is definitely in the creative corner, which explains the magic tricks, फिल्म मेकिंग कैसे होती है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, म्यूजिक कैसे बनाई जाती है, हाउ टू प्रैक्टिस म्यूजिक एंड ऑल, ये सारी चीजें भी एंटरटेनर्स कॉर्नर्स में मिलती हैं हमें। देन वी ऑल्सो हैव अ ओरेटर कॉर्नर। ओरेटर कॉर्नर में आप क्या बेसिकली सीखते हो कि डिबेटिंग कैसे करनी चाहिए, बिकॉज यू आर इन दैट टाइम जहाँ पे आपको सारी चीजें आनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द चीजें आनी चाहिए बेसिकली। तो पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको क्रिएटिव कॉर्नर पे जरूर दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट वी आर गिविंग इन दैट क्रिएटिव कॉर्नर इज बुक लवर्स कॉर्नर। यस, अगर आप मेरी तरह ही बुक वर्म है, आप बुक से बहुत प्यार करते हो और आपको सब्जेक्ट्स के अलावा भी कोई कोई बुक्स पढ़ने का इच्छा है, कोई कोई बुक्स का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये कॉर्नर है। यहाँ पे हम आपको ब्लॉगिंग, स्टोरी टेलिंग में मास्टरिंग करना, बुक क्लब क्या है, कैसे है, और बहुत कुछ सारे बेनिफिट्स हम आपको देते हैं क्रिएटिव कॉर्नर पे। Then one benefit that you get while joining an academy is that an academy gives you a comprehensive syllabus. Comprehensive syllabus का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नहीं। आप अपने जो आपकी उस कैटेगरी में जितने सब्जेक्ट्स होंगे आप सारे पढ़ेंगे। जैसे आप अभी क्लास 8th में है तो आपकी सब्जेक्ट्स हैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो ये आप पांचों सब्जेक्ट्स ये आपके पांचों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं इन दी अन अकेडमी क्लास 8th सीबीएसई 8। तभी मैंने कहा लेट्स क्रैक सीबीएसई 8। मैंने ऐसा नहीं कहा कि लेट्स क्रैक सोशल साइंस सीबीएसई 8। आई हैव सेड सीबीएसई 8 विच इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 8। ठीक है। for all these benefits, what do you have to do? You just have to download the learning app, Unacademy learning app, on your phone, on your laptop, on your MacBook, whatever you have. Then you need to install it, click on the manage goals, go for the CBSE class 8, then on the plus sign, and then get the subscription. Before going towards the subscription, if you have any kind of queries related to the subscription कि कौन सा पैकेज है, कहाँ कैसे करना है, if you have any kind of queries, we are there for you for resolving all those queries. ठीक है। सो दिस सब्सक्रिप्शन प्लान इज फॉर क्लास 6 to 12। एनीबडी, एनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12 कैन पिक दिस एनी ऑफ द पैकेज फॉर इट्स क्लास। ठीक है ना। सिर्फ मैनेज गोल्स पे जाके आपको अपनी क्लास चेंज करनी है। जैसे मैंने सीबीएसई 8th कहा, आप सीबीएसई 9th, 10th, 11th, 12th जो आपको ठीक लगे आप उस पर कर लो, है ना। सो दिस सब्सक्रिप्शन इज फॉर 1 month, 6 months, 12 months, 24, 36, 60, 85। हम आपको 85 मंथ्स तक का दे रहे हैं, बट आपके लिए सिंस यू आर इन क्लास 8th, द बेस्ट डील इज टू आइदर गो फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। 12 मंथ्स में आपका पर मंथ आता है 1125 एंड 24 मंथ्स में वो कम लगभग आपके 300 रुपए, 200 रुपए कम हो जाता है। ठीक है। तो वाई नॉट टू गो फॉर 24 मंथ्स? इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ 200 रुपीज पर मंथ। तो क्यों नहीं हम 24 मंथ्स के लिए जाए, ताकि हमारा क्लास 10 तो आराम से निकल जाए, है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा टू लर्न। वाई टू वेस्ट दैट सब्सक्रिप्शन अमाउंट? और अभी आपको ये प्राइस कम है, कल को ये प्राइस थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पर ईयर इट इज जस्ट 13,500 और 22,500। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर एनी ऑफ द अदर ऑप्शंस। दीज टू ऑप्शंस आर बेस्ट फॉर यू। अब बेस्ट इसका मतलब ये चीप है। ठीक है। अगर आप 24 मंथ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ पर मंथ आपकी जो लगेगी फीस
वो है 1000 रुपए से भी कम। आप 1000 रुपए से भी कम में आप अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस आप क्रिएटिव कॉर्नर पे जा रहे हैं, वहां पे कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। अगर फिर भी आपको ये अमाउंट्स हैवी लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, देन यू कैन use my code which is Kumari, Kumari, to get another 10% straight discount on this amount. ठीक है, आप मेरी कोड अप्लाई करें विच इज Kumari, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ, है ना। तो उससे क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि दिस इज 22,500, तो -10% इज अराउंड 20,125, लाइक दैट। सो आपको लगभग 1,000-2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। यू आर गेटिंग एट अ गुड प्राइस। फिर उसको आप 12 से डिवाइड कर लो तो आपकी पर मंथ और कम हो जा रही है। सो व्हाट्स द लॉस? देयर इज नो लॉस, राइट। देन use my code which is Kumari and proceed to pay, and then we are good to go with the plus of the Unacademy. Also, you can join us on the Telegram channel. The link is here, and you will also get it in their video link. आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक पे भी, इस वीडियो के साथ आपके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी जरूर मेरा लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। दिस लिंक इज बेसिकली फॉर यू टू नो कि कब कौन सी एजुकेटर क्लास ले रहे हैं, व्हेन, व्हाट इज देयर टाइम एंड व्हाट टॉपिक्स दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, क्या कोई मेंटी होने वाली, कोई क्विज होने वाला है। सो इट्स काइंड ऑफ अ बिग थिंग फॉर यू टू नो। ठीक है, आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो डू व्हाट, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल, सो दैट यू आर वेल अवेयर। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब लेट्स क्रैक CBSE, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नाउ बहुत बातें हो गई अनअकैडमी की मेरी। अब हम थोड़े आपसे मतलब आपकी बात करते हैं कि आई होप एवरीबडी एट होम आर सेफ एंड साउंड। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। Understanding laws are basically, in this chapter you are going to learn about what is a law, how it has came to India, or how it was made in India. What you I hope you that you already know that the constitution gives us certain rights, certain fundamental rights, on which अगर कुछ भी चीज आप इनमें से कोई भी राइट्स अवॉइड करते हो या कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है, सो यू नो वेयर टू गो। यू आर fully, you do have full access to the court, you have full access to the laws. अगर मान लीजिए कोई आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो गई या कोई हायर अथॉरिटी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपको पता है कि आप लॉज के तहत जाकर अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, सो we will we already know that parliament is in charge of making laws, right? We have separation of powers where executive, legislature and judiciary. So the powers, that the work that judiciary has to do, sorry, executive has to do, is to represent us, है ना। they have to represent us. दूसरी तरफ, the no sorry executive are the people who implements laws, है ना, who implement laws on behalf of us, who makes laws for running the government. So these people are basically responsible for making the laws. ठीक है, ये लॉज बनाते हैं। देन हमारे हैं लेजिस्लेचर्स। जो लेजिस्लेचर्स का काम क्या होता है, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दे रन, दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कहीं इधर से उधर ना हो जाए। सारे तो भाई मेजोरिटी में नहीं आ सकते, तो देयर हैज टू बी अ पार्टी, अ कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली लेजिस्लेचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एंड द मिनॉरिटी पार्टी। ठीक है ना। देन वी हैव a judiciary. Judiciary is basically a system of entering into the कोर्ट सिस्टम। आप कैसे कोर्ट तक जा सकते हो वो आपको जुडिशरी सिस्टम में बताया जाता है, और ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which is separation of power. So we have to know that, does laws apply to everybody? Does laws says that each law, yeah, each article of constitution is applicable to everybody? That is our question, and that is going to be our first question for today. Do laws apply to all? सबको, common people, yes. Government officials, yes.
Government, yes. Judiciary, of course. Those who make the laws are also being liable to follow the laws. है ना? अगर आप लॉ बना रहे हैं तो आई एम सेइंग दोज हु आर मेकिंग द लॉज, see, I want to write it in a very fine way. Making laws are also liable to follow laws. So they have to follow laws. ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप अपने लॉज फॉलो नहीं करोगे. जैसे कि आपको अगर पता है तो जो हमारे नारायण भगवान है ना, विष्णु भगवान है, he is the rachayata, he is the organizer of the universe, and he makes laws, and he himself had to follow those laws. तो जब भगवान फॉलो कर रहे हैं तो हम जैसे कॉमन पीपल क्यों नहीं करेंगे? ठीक है. सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. So we will know how do new laws came into being. Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do in such circumstances? Because sometimes we don't know that there are certain rights that are protecting us. इससे पहले हमें ना कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता नहीं था. ठीक है. देर आर सर्टन कंज्यूमर राइट्स जिसके बारे में अपने को पता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कोपरा एक्ट, ठीक है, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इट इज नॉट कोबरा, इट इज कोपरा. ठीक है. कंज्यूमर, CO stands for consumer, PR stands for protection, and A stands for act. So COPRA Act was enacted by the law, by the constitution, in order to protect the consumers. Consumers were being exploited by the individuals. हाँ, individuals in the sense कि business वाले लोग consumers को पूरी तरीके से लूट रहे थे. They were charging high prices, they were not giving good quality, they were just saying कि नहीं भैया और दूसरी जगह नहीं मिल रहा, buy it from me. They were lying all around. So consumers were being exploited to the next level. So the constitution, what they have done, they said that one should not exploit consumers. है ना? कंज्यूमर की भी कुछ राइट्स होने चाहिए. दे शुड हैव द राइट टू अक्वायर कैश मोमो. हमारा सबसे पहला राइट ये होता है कि हम कुछ भी खरीदे तो हमें लेना चाहिए कैश मेमो, एक रसीद लेनी चाहिए. ठीक है. कैश मेमो हमें पक्का पक्की लेना चाहिए. दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग. दैट मेरा मोटिव of telling you all this is that the laws are applicable to everybody. आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर एक कॉमन इंडिविजुअल तक अगर आप बोलो तो ये सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है. बिकॉज ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने हमारे सारे लोग एक जैसे हैं. And I hope कि one of the key fundamental rights given in the constitution was equality before law, right to equality. तो according to that सारे लोग जो हैं वो हमारे इक्वल है. यानी वन पीपल वन पर्सन वन वोट. ऐसा नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं 2 वोट डाल सकती हूँ. बिल्कुल भी नहीं. मैं एक ही वोट डाल सकती हूँ. मेरा जो वर्कर होगा, जो मेरे घर पे जो काम करते होंगे या मैं किसी के लिए काम करता हूँ, सबको एक ही वोट डालने का हक है. एंड वो हक हमसे कोई नहीं ले सकता. दिस वॉज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. Second thing is that that laws cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste या gender. See, there should not be any discrimination. तभी तो उसको हम right to equality कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसको? Right to equality. है ना? According to right to equality, one should not discriminate. One should not be partial to anybody else. One should not be partial to anybody else depending upon their religion, caste, or gender. Suppose जैसे कि I am from upper caste, so I am mistreating the lower caste person. I am Hindu, I am mistreating. मैं अच्छे से एक lower caste के इंसान के साथ बात नहीं कर रही. ठीक है. Why? Because वो छोटे caste का है. क्यों भाई? He is a human or she is a human. I am also a human. We are humans. So why we should discriminate? So we should never discriminate between the people, between persons, depending upon their caste.
नेक्स्ट रिलीजन का आप समझ लो, अगर आप हिंदू हैं तो आप, जस्ट बिकॉज यू आर हिंदू यू हैव द मेजोरिटी इन द कंट्री, इट डजंट मीन कि आप दूसरे कास्ट को, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट पीपल, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट दीज पीपल। अच्छा, मैं अथॉरिटी में हूँ, आई एम द बॉस ऑफ द ऑफिस, मेरे एक ऑफिस में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग काम करते हैं, ठीक है, बट मुझे जब प्रमोशन देना था, जब मुझे प्रमोशन देने की बात आई, देन व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ, I am Hindu, I have selected only Hindu individual for the promotion. And what about the other caste, other religions? I did not give attention to them. So that is totally, totally wrong. One should not discriminate depending upon the religion of the person. ठीक है. Next, we also see that there has been a gender discrimination. Yani, if I am a girl and there is a boy in standing, we both are facing an interview, and even if my marks are well, I am well behaved, I am well dressed up, मेरी इंटरव्यू भी अच्छी गई, my marks are also nice, but I am not getting the job because I am a girl. तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों की कैपेबिलिटी सेम है एंड स्टिल ही इज अबव मी, तो डेफिनेटली उसको जॉब दे दो भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट एंड आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज आई एम अ गर्ल, then it is totally, totally wrong, and I can raise queries, raise question against this discrimination between the, in front of the court. This is very, very important. You should understand that laws apply to all, सबके लिए law equal ही है, ठीक है। पर क्या, was it always like this? क्या ये हमेशा से ऐसा था कि there was equality between genders, there was equality between the caste, one is equal before the law? क्या ये सारी चीजें हमेशा से थी? हाँ, क्या हमारे देश में ये सारी चीजें हमेशा से थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड इट, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, सब लोग लॉ के नीचे ही हैं। कोई भी हमारे जो कोई भी, मैं बता तो रही हूँ, अगर कोई पॉलिटिशियन है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या कह लो एक आईएएस ऑफिसर है, वो भी लॉ के ऊपर नहीं है। दे ऑल्सो कैन नॉट ब्रेक द लॉ, ठीक है ना। सपोज मान लो कि ऐसा बहुत सीन देखा गया है कि हमारे चाचा विधायक है तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब जेल में जाएंगे तो आपको वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो बाकी के कॉमन थीव्स या बाकी के कॉमन क्रिमिनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मनमानी कहीं नहीं है बेटा, आपको सबको साथ में ही रहना है, साथ में ही चलना है, बिकॉज लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी, ठीक है। बिफोर व्हाट हैपेंड कि दिस वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, हमेशा गड़बड़ होती थी, हमेशा लोग, जो लोग पावर में थे, जो लोग अथॉरिटी में थे, दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल अपॉन, मतलब वो अपनी ऑटोनॉमी दिखा के कि हम ही अकेले हैं भैया, हम ही चाचा हैं, हम ही विधायक हैं, तो हमसे कोई ऊपर नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंट कम्युनिटीज वर एंजॉइंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दिस लॉज अमंग देयर ओन। इट मीन्स व्हाट, दैट जो लोग थे ना, वो लोग के पास जब पहले पहले जब लोग थे, तब वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्योंकि पावर में थे, वो लोग अथॉरिटी में थे, तो दे वर एंजॉइंग सर्टेन बेनिफिट्स, ठीक है ना। पहले आइए आपका हम काम कर देंगे, आइए हम आपको आपको आपका काम निकलवा लेंगे, ये सारी चीजें पहले होती थी। जिसमें हम एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज, हाँ, एक पॉलिटिशियन है, उसका बेटा ने किसी को मार दिया, he had killed somebody because of the road accident, but because his father is a politician and is a hefty politician, मतलब ही इज इन पावर, ठीक है, मान लो कि वो सीएम ही है, ठीक है, कोई कंट्री, कोई एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, पर स्टिल वो अपने बेटे को छुपा नहीं सकता, उसको भी लॉ के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट इफ ये पहले ना नहीं होता था, वो लोग अपने बच्चों को बचा लेते थे, किसी और को फंसा देते थे कि नहीं वो गलत है, मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा ये सब में नहीं अटका है। ये सारी चीज़ों को बदला गया है कि अगर आप अथॉरिटी में हैं, भैया, तो आप ही क्या अपनी सारी पावर्स यूज़ करेंगे क्या? और वो सारी पावर्स आप अपने लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो कॉमन पीपल है वो क्या बोलेगा? बाय बाय, हम कुछ नहीं करेंगे। दैट वाज़ नॉट देयर। दिस वाज़ टोटली, टोटली चेंज्ड
सो ये वाली सारी सबसे पहली हमारी कंसर्न यही थी कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज थे दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू एडमिनिस्टर देयर ओन लॉज डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन, मतलब वो अपने में ही कुछ कुछ कर ले रहे थे, ठीक है ना। एक सबसे बड़े दिक्कत का बात ये था ना कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि लॉ अकॉर्डिंग टू द नेशनल लॉ कुछ अलग बात है और लोकल लॉ कुछ और है। तो अब एक इंसान को बोला गया कि उसने मान लो कि किसी किसी का चेन खींच के वो भाग गया था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो एक लॉ कहता है कि इसको भैया एक एक साल का जेल होगा एंड ही हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन। और दूसरा लोकल लॉ कहता है कि इट इज नथिंग, यू पे हिम जस्ट 500 रुपीज, इट इज ओके, ठीक है ना। अब इंसान बचा हुआ है ना, तो देन देर इज नो इशू। तो देर वॉज अ क्लैश बिटवीन दी लोकल लॉज एंड दी नेशनल लॉज। सो उस केस में क्या हुआ कि जो पनिशमेंट थी ना वो बच जा रही थी, ठीक है। तो द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विथ लोअर कास्ट बीइंग मोर हाईली पेनलाइज्ड। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उसमें मैं क्या बता रही हूँ कि एक इंसान जो हायर कास्ट का था, अपर कास्ट का था, उसने क्योंकि चेन छीनी इसलिए उसको उसको बहुत लीनियंटली बोल दिया कि नहीं भैया आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, कम आप पैसे दे दो बस बच जाओ। पर वही अगर वही एक चेन खींचने वाला कोई एक लोअर कास्ट का होता था या दूसरी कम्युनिटी का होता था, तो उसको स्ट्रिक्टली पेनलाइज किया जाता था। तो भैया वो तो बिल्कुल गलत है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट एंड रिलीजन, दैट इज टोटली टोटली रॉन्ग, है ना। सो हाँ, sometimes it is believed that Britishers has actually introduced the rule of law in India। जो हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ आई थी वो ब्रिटिशर्स ने लाया था, ठीक है। लॉ अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ब्रिटिशर्स हैव ब्रॉट द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, but this claim was actually disputed, this claim was actually being uh, कैसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेड ऑन टू ग्राउंड्स, ठीक है ना। दो ग्राउंड्स थे, फर्स्ट कि कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड सेकेंड रूल, द सेकेंड ग्राउंड वाज द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस को कोई किसी तरीके का राइट ही नहीं दिया था। उनको बस एक कोर्ट में वो ले आते थे लेकिन उनको वोट डालने का हक नहीं था। सो दिस वाज देयर, ठीक है ना। सो वी हैव सीन दैट कि किस तरीके से ऑन दीज टू ग्राउंड्स हमारे दिस क्लेम ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट वाज प्रेजेंट इन इंडिया वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स। तो इसको हम मना करने के लिए, इसको हम निग्लेक्ट करने के लिए हमने दो ग्राउंड्स बनाए हैं जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी, मतलब छुपा छुपी, ठीक है ना। तो ये लॉ को मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर आर्बिट्रेरी इन देयर एक्ट। जो चीज लिखी हुई थी वो तो वो फॉलो करते थे, लेकिन अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता था तो वो कुछ और ऐसे एक्शन ले लेते थे डिपेंडिंग अपॉन द आर्बिट्रेरीनेस। और वो फिर बोलते थे अब आपको बिना कोई ट्रायल के हम आपको चार्ज करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर और दिस काइंड ऑफ एक्शन वाज अकॉर्डिंग टू द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो ये सेडिशन एक्ट है क्या? Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। इसका मतलब क्या है कि अब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर मिसट्रीटिंग इंडियंस, दे वर मिसबिहेविंग विद इंडियंस। किसी को भी मारना, किसी से भी ज्यादा पैसे मांगना, पैसे नहीं देने से उसको जेल में डाल देना, तो इंडियंस वर वेरी लाइक एक तो पहले आप हमारी कंट्री से नहीं हो, आप आए बाहर से वो भी ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद आप ट्रेडिंग करते करते आपने कॉलोनियल रूल बना लिया, उसके बाद भी आप हमें जीने चैन से जीने देते नहीं हो। तो सॉरी, तो इंडियंस दे हैड दैट थिंग कि अब तो वी हैड टू प्रोटेस्ट, वी हैव टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। तो ना जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी पसंद नहीं आया कि आप कैसे हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमारे खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, वो अगर कोई भी इंसान को वो देखते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देन दे वर बीइंग अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर दिया जाता था और उनको कोई भी ट्रायल नहीं दिया जाता था। दिस ट्रायल मीन्स
उनको कोर्ट के सामने भी पेश नहीं किया जाता था कि वो भी अपना बात कह सके. सो इंडियन नेशनलिस्ट began fighting and protesting against the arbitrary use of authority by the Britishers. So Britishers, they were doing whatever they feel like. मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं था. तो इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया? They began fighting and they were protesting कि नहीं भैया, we want justice. हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, आप हमारी मांगे पूरी करें. ठीक है, पहले तो वो लोग मांगे के लिए कर रहे थे, फिर बाद में बोला वी वांट स्वराज, हमें चाहिए इंडिपेंडेंस. ठीक है ना. Then they also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. इसका मतलब क्या है कि इंडियन nationalists, they were criticizing heavily, they were protesting the authority of British. They began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law that they were forced to obey. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है? They began to use law to defend the legal rights of Indians. In Indian legal profession, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. Before, what happened that Britishers, they did not allow the Indians to come to the platform and raise their voices. तो इंडियन लॉयर्स तो आप भूल ही जाओ, सारे ब्रिटिश लॉयर्स थे. ब्रिटिश लॉयर्स लड़ रहे थे इंडिया के लिए. हो सकता है क्या कि कोई इंडिया के लिए लड़ लेगा ब्रिटिश लॉयर? तो देन दे बिगैन टू से कि नहीं, वी वांट आल्सो द पावर, वी आल्सो वांट द स्पेस इन द कोर्ट रूम. हमें भी उस कोर्ट रूम के अंदर आना है ताकि हम अपनी आवाज उठा सके. एंड दिस आवाज वाज फॉर बेसिकली ग्रेटर इक्वालिटी एंड दे वांटेड टू चेंज कि जिस तरीके से लॉ काम करता है वो उस सोच को बदलना चाहते थे. ठीक है, जिस लॉ को वो लोग को फोर्स करके ओबे करने के लिए बोला जाता है. जैसे टेक फॉर एग्जांपल, हाँ, आपके स्कूल में आई बिलीव दैट स्कूल यूनिफॉर्म्स इज अ मस्ट. ठीक है, तो आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो आपने बोला कि नहीं, वी विल रेज अ वॉइस. बट एक चीज समझ लो, स्कूल यूनिफॉर्म इज अ मस्ट, आपको पहनना चाहिए, वरना कोई कैसे भी आ जाएगा, कोई गुंडे के स्टाइल में आ जाएगा, कोई एकदम डेकडअप होके मॉडल की तरह आ जाएगा, तो वो सारी चीजें सही नहीं है ना. तो देर इज अ डेकोरम ऑफ स्कूल, देर इज अ डेकोरम ऑफ कोर्ट रूम. तो उन्होंने बोला कि वी आर ऑल्सो इक्वली नॉलेजेबल, वी ऑल्सो आर इक्वली लिटरेट लाइक यू, देन वाई वी आर नॉट इन दी कोर्ट रूम. हमें भी कोर्ट रूम में होना चाहिए. So that is how they have fought for this thing, जहाँ पे उन्होंने बोला कि we want the idea of justice including as a part of law. तो उनका ये आइडिया था, नेशनलिस्ट, द इंडियन नेशनलिस्ट, दे सेड कि हमें बनाना है, हमें जस्टिस चाहिए भैया, तो हमें भी लॉ में आप इंक्लूड करें. वी शुड ऑल्सो हैव द राइट ऑफ बीइंग अ लॉयर. सो देन because of this, Indians played a major role in the evolution of the law during the colonial period. ठीक है. So, by the end of the 19th century, the Indian legal profession began emerging and demanded respect in colonial rule. Then we can say that by the end of the 19th century, यानी 1800 खत्म होते होते 1890s के आसपास, जो लीगल प्रोफेशन था, इंडिया का जो लीगल प्रोफेशन था या जो लॉयर्स वगैरह थे, वो लोग ने, उनका काम बढ़ के आने लग गया. द लॉयर्स, दे हैव केम इनटू फोर्स, जो इंडियन लॉयर्स थे. ठीक है, एंड दे डिमांडेड कि दे आल्सो वांट रिस्पेक्ट इन दी कॉलोनियल कोर्ट. कॉलोनियल कोर्ट का क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का रूल चलता था, और ब्रिटिशर्स का रूल, क्योंकि दे वर subjugating the another country, that is why it is called colonial rule. I hope कि आपने ये चीज ट्रेड एंड टेरिटरी में पढ़ा था. ठीक है. Indian judges, they also began to play a greater role in making decisions. वहां पे ना इंडियन जजेस, ऑब्वियसली जब आप लॉयर बनते हो तो लॉयर्स के बाद आपको कुछ एग्जाम्स जजेस के लिए क्लियर करनी होती है. तो आपने जब जजेस के एग्जाम क्लियर किए तो दे बिकेम द इंडियन जजेस, राइट. जजेस थे, जज बने क्योंकि दे वर फ्रॉम इंडिया, दैट इज वाई दे वर कॉल्ड एज इंडियन जजेस. तो दे हैड प्लेड अ ग्रेटर रोल, दे स्टार्टेड मेकिंग डिसीजंस फॉर इंडियंस.
ठीक है, वो उन्होंने डिसीजंस इंडिया के लिए करना करना शुरू कर दिया। तो विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज फॉर द कंट्री सॉरी लॉज फॉर द कंट्री began to be made by the representative. Sorry, this is to be made by, this is not the, this is to be. So they said कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, देन द लॉज फॉर द कंट्री विल बी made by the representatives of the people, the people of the representative of the people, और जिनको लोगों ने इलेक्ट करा होगा वही लॉ बनाएंगे, है ना। तो वही तो हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स में वी हैव लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव आर द पीपल हु एक्चुअली इम्प्लीमेंट लॉज, है ना। इम्प्लीमेंट, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दे कम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं, एग्जीक्यूटिव फ्री पावर में आते हैं, और उनका काम होता है लॉ बनाने का। ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया का जो ये कहना था कि वी हैड इंट्रोड्यूस्ड लॉज इन इंडिया, उसको पूरी तरीके से खारिज किस तरीके से किया था। ठीक है, देन इसी तरीके से we will move forward to the next topic, which is how do new laws come about। अभी नए लॉज आए कैसे थे, है ना। पार्लियामेंट ने क्या सोचकर, कैसे सोचकर ये नए नए लॉज बनाना शुरू किया। वो खुद से तो बनाते नहीं थे, उनको कुछ ऑब्वियसली कुछ पावर्स, कुछ सोच होनी चाहिए उनके अंदर भी, ताकि वो लॉज बनाए। सो वी हैव सीन दैट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 was enacted, Hindu Succession Act, ठीक है ना। It is the act according to which the the sorry Indian Succession Act 2005। According to this act, ये आपने क्लास 5 में पढ़ा है, ठीक है। ये एक्ट ये अपने क्लास 5 सॉरी 5 नहीं 6 में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अब जो प्रॉपर्टी है वो पहले ना सिर्फ बेटों को मिलती थी, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. So Hindu Succession Act has actually given empowerment to the sons, to the daughters and to their mothers। ठीक है, जिनको अगर मान लो कि जब प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे तो सन्स को भी पैसा, सन को भी वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, डॉटर को भी मिलेगा, और जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी मदर को भी मिलेगा। ठीक है ना। तो सबको बेसिकली सबको दिया जा रहा था हिस्सा अकॉर्डिंग टू दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो वी विल नो कि हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी। तो हाउ डू वी गेट दिस आइडिया कि हमें नए लॉ की जरूरत है। तो द पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। ऑब्वियसली पार्लियामेंट इज द वन who is making the law, so he has the supreme power to make law। I hope you know that, right? Then the important role of parliament is to be sensitive, it's to be sensitive to the problems faced by the people। जैसे कि अभी हमारे फार्मर्स बिल पे लड़ाई चल रही है, फार्मर्स बिल पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, भारत बंद हो रहा है, तो ये सब पे ना वो उन ऐसा नहीं है कि फार्मर बिल बन गया तो पार्लियामेंट विल नॉट थिंक अबाउट इट अगेन, है ना। पार्लियामेंट हैज टू थिंक अबाउट इट, पार्लियामेंट हैज टू बी सेंसिटिव, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, बिकॉज द पीपल दे हैव इलेक्टेड देम, सो दे कैन नॉट डू वट एवर दे फील लाइक। ठीक है ना। जस्ट बिकॉज आप पावर में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को फेस, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उनको इग्नोर करोगे, है ना। अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है या कहीं पे किसी इंसान ने बैंक को लूट लिया है, तो आप ऑब्वियसली बैंक का पैसा अगर आप लूटोगे तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन लोगों का पैसा गया। तो उसकी तरफ क्या पार्लियामेंट सेंसिटिव नहीं होगा क्या? वो उसकी तरफ वो ऐसे बोलेगा कि नहीं मैंने आंखें बंद कर ली? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो यस, तो इस सब ये जो प्रॉब्लम्स कॉमन पीपल फेस करते हैं उसके खिलाफ या उसके तरफ पार्लियामेंट हैज टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, दे हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। ठीक है ना।
जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम अ लॉ। पहले क्या हो रहा था, I'll explain you कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म or of or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife। ये डोमेस्टिक वायलेंस में क्या हुआ, आई होप कि आपने ज़्यादा नहीं देखा हो अपने घरों में स्पेशली, पर बेसिकली क्या होता है, दी हस्बैंड हु इज़ द अडल्ट मेल, जो घर के सबसे बड़े मेल होते हैं, दे आर हिटिंग, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर वाइफ्स। वो अपने वाइफ्स को मारते हैं, पीटते हैं। तो ये हमेशा से चलते आता था, मतलब अपना गुस्सा वाइफ पे निकाल दो यार। वाइफ कुछ बोल रही है तो क्या आप उसको मार दोगे? नहीं ना, अगर आप उसकी भी बात सुनो। बट द अडल्ट मेल्स, बिकॉज इंडिया इज अ मेल पेट्रियार्की कंट्री है ना, यहाँ पे मेल डोमिनेंस ज्यादा है, तो मेल्स दे वर डूइंग वट एवर दे फील लाइक। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। सो इंजरी मे बी कॉज्ड बाय फिजिकल बीटिंग अप द वुमेन और फिजिकल बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। तू अच्छी नहीं है, तेरे वजह से मैंने सारा काम धाम मेरा सारा छूट गया, तू कल मुई है, तू उसको दुनिया भर की बातें सुनाना, यानी हाँ उसको मेंटली टॉर्चर भी करना भी है। ऐसा नहीं है कि उसको मारते ही थे, उसको मेंटली टॉर्चर करते भी थे, उसको भी हम डोमेस्टिक वायलेंस में ही काउंट करते हैं, बिकॉज द वाइफ्स आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन देयर हस्बैंड, है ना। सो सच काइंड ऑफ अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। क्या पता कि उसको जो बीवी है उसको बोल दिया कि तू ही पैसे लाएगी, तू ही, तेरे को ही कमाना है, या तो ऐसा है कि उसको बिल्कुल ही पैसा नहीं देते थे। तो ये दोनों सीन हो सकता है। तो दैट वाज इंक्लूड, दैट केम इनटू domestic violence. So the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. So basically, domestic violence includes uh, not only the people who have lived, who are living together, या जो रह चुके हैं साथ में। अगर अत्याचार हुआ है, वायलेंस हुआ है, किसी भी तरीके का फिजिकल या इमोशनल, दोनों तरीके का अगर वायलेंस हुआ है, तो वो ज़रूरी था कि उसके तरफ एक लॉ बनाया जाए। सो अ डोमेस्टिक The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was implemented to protect women from being abused and injured by male. तो ये एक एक्ट था जो विमेन के लिए बनाया गया था, टू प्रोटेक्ट देम इन ऑर्डर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005. So basically, this was a bill that was raised in the लोक सभा। लोक सभा में उसका यस हुआ एंड वो गया राज्यसभा में, एंड फाइनली द पार्लियामेंट हैज टेकन इट अ यस एंड दे हैड मेड इट एज अ लॉ कि अगर कोई भी मेल इंसान अगर विमेन पे हाथ उठाता है, विमेन को टॉर्चर करता है, जो उसके घर में रहती है, तो वो जो लेडी है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है। देन दिस वाज बेसिकली डन टू प्रोटेक्ट द वुमेन, है ना। ऐसे थे ना पहले, बहुत जमाने में हमने देखा है, जो जो लेडीज थी घर की स्पेशली, उनको ना जब उनके हस्बैंड्स मारते थे, जब उनको पैसे नहीं देते थे, उनको मतलब ऑब्वियसली ना लड़कियों की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए वो कुछ करने नहीं देते। तब नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम बाहर गए तो तुम ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखा देना। तो वो सारी चीज़ें ना, दे वर ट्रॉमेटाइजिंग द वुमेन फ्रॉम हियर, ठीक है। उनके अंदर डर फैला देती है। ऑब्वियसली हम जितना भी कह लें कि विमेन एंड मेन आर इक्वल, बट विमेन्स कैन नॉट मैच, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस शी इज़ अ रेसलर, तो वो एक हट्टे-कट्टे मेल का सामना नहीं कर सकती। अब मैं तो बहुत ही पतली हूँ, मेरे से तो भैया लड़ाई-वड़ाई नहीं हो सकती है। तो इंसान क्या उस टाइम पे क्या करे? सिर्फ़ मार खाते रहे, सिर्फ़ मार खाते रहे, सिर्फ़ मार खाते रहे। क्या हम बस इसीलिए बने? तो फिर उस टाइम पे द अथॉरिटी, द पार्लियामेंट हैज़ डिसाइडेड, नहीं, अब वुमेन पे अत्याचार बहुत हुआ। जब उनके साथ अगर ऐसा किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दे हैव द राइट टू रेज़ देयर वॉइस अगेंस्ट दैट वायलेंस।
ठीक है ना? सो इसमें रोल ऑफ सिटीजन्स वाज वेरी क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। तो बेसिकली ये कंसर्न आया कैसे? पार्लियामेंट के दिमाग में डालना पड़ता है ना, पार्लियामेंट को रेज करना पड़ता है, पार्लियामेंट के सामने सवाल खड़े करने पड़ते हैं कि देखो, आपका एक एक और वर्ग है ऑफ द सोसाइटी, एक और ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जहां पर अत्याचार हो रहा है और आप ही के सोसाइटी का एक पार्ट उस पे अत्याचार कर रहा है, तो ये कब तक, आखिर लड़की कब तक सहे? तो ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना? तो इसको फ्रेम करवाने के लिए, एक लॉ बनाने के लिए सिटीजन्स दे हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए या विमेन को बचाने के लिए ही, ऐसे लॉज के लिए ही सिर्फ सिटीजन्स काम करती हैं, नहीं। देर आर सम मोर लॉज that has been that has came into effect in order to protect others। जैसे मैंने आपको बताया, कोपरा एक्ट है ना, कोपरा एक्ट, दिस कोपरा एक्ट is for women and men both। this is for both the individuals। पर इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके, अगर आपको कंज्यूमर, एज कंज्यूमर आपने जब कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आपके प्रोड्यूसर ने आपको चीट करा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन रेज योर क्वेरीज, यू कैन गो टू द कोर्ट, है ना? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू लॉ सिर्फ विमेन के लिए बनाए गए हैं, नहीं, इट हैज केम इनटू इफेक्ट फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन लोगों का होना जरूरी है, तभी तो हम कहते हैं कि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे लोग, यहाँ पे लोगों की आवाज को सुना जाता है। द पीपल हैव टू लिसन इन टू all these things, so they have to be very very sensitive to the problems faced by the people, ठीक है ना? ओके। काफी बार हमने ऐसा भी देखा गया है कि जब जिनको लोग, जो विमेन है, उनको काफी बार ना विक्टिम्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या ही कहें, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हाल होता था। विक्टिम्स हैं, दीज आर द पीपल हु हैव स्टार्टेड दिस इशू, हमने बहुत ज्यादा देखा है। बट दिस इज नॉट, जो लोग सर्वाइव करके, जो लेडीज हैव केम अप, उन्होंने अपनी जब स्टोरी बताई है, देन डेफिनेटली हमें ज्यादा पता चला है दैट हाउ वीमेन हैज एक्चुअली स्ट्रगल्ड, ठीक है ना? बराबरी में रिश्ते हिस्से से मुक्त, है ना? व्हेन इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री, ये एक मोटिव है, ये आपके बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, देन द मेल एंड द फीमेल दे बोथ हैव इक्वल राइट्स, दे हैव इक्वल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज द मेल इज गोइंग आउट फॉर गेटिंग मनी, तो इसका मतलब लेडीज कुछ नहीं करती। भैया किसी दिन घर का काम करके देखो, कितना कष्ट है घर का काम करने में। जिस दिन धो लिया ना, उसके बाद अगले दिन ही बोलोगे मम्मी आप ही करो, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना? सो वी शुड ऑलवेज ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट, लव टू आवर मदर्स, टू आवर वाइफ्स, टू आवर सिस्टर्स, व्हाटएवर यू हैव, ठीक है ना? So the role of citizens is very very crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws, from establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process. The voice of the citizen is a crucial element। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक लॉ को लाना है, if I want to establish a law, then the people has to be very very vigilant, they have to raise their voice consistently। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोला, आप चुप हो गए, आप उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे क्या हुआ था, अगर मान लो कि जो स्वच्छता अभियान जो चल रही है, ठीक है ना? वो स्वच्छता अभियान ज़रूरत क्यों पड़ा? इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग कचरा फेंकते थे, दे यूज्ड टू लिटर अराउंड एंड दे वर नॉट लीस्ट बॉदर्ड। दे वर लीस्ट बॉदर्ड, ये नॉट एट ऑल बॉदर्ड एट ऑल, ठीक है ना? तो द गवर्नमेंट दिस सेड कि अगर हम इसको एक लॉ बनाते हैं, देन पीपल विल नॉट फॉलो। तो इसका, इसलिए उन्होंने पहले एक अभियान शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया, जिसमें लोग खुद भी ना फेंके और दूसरों को फेंकने से भी रोके। तो ये अभी तक अभी सिर्फ एक अभियान है, कल को क्या पता कि इसे एक लॉ बना दिया जाए। हु नोस कि कब क्या हो सकता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, एक पेंडेमिक चल रहा है हमारे कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मास्क पहनना अभी एक ज़रूरत है, ठीक है ना? इसको लॉ मत बनाइए, इसको एक कानून मत बनाइए, इसको आप खुद ही फॉलो कर लीजिए। क्या हमारे हमारे घर पे
जब हम रहते हैं तो क्या हम घर गंदा करते हैं? नहीं ना। तो ये सारी चीजें जब हम अपने घर पे नहीं करते तो हम बाहर क्यों करते हैं? वी शुड नॉट डू इट। तो वी शुड एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल दिस थिंग्स। वी शुड ऑलवेज से, आप तो यंग जनरेशन हो, लाइक यू आर लाइक मी। हम साथ में मिलकर जब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो लोग फेंक रहे हैं, मेरा पड़ोसी फेंक रहा है या मेरे साथ चलते हुआ इंसान फेंक रहा है, मुझे उसको मना करना चाहिए, मुझे उसे कहना चाहिए कि आप उठा के इसको डस्टबिन में डाल दो। इतना मेहनत है, नहीं तो पॉकेट में रखो, जब डस्टबिन दिखे तब डाल दो। ठीक है ना? इससे क्या होता है, एक तो गंदगी से आपको कीड़े मकोड़े तो जरूर आते हैं, डिजीजेस जरूर फैलते हैं। दूसरा, इट डज नॉट लुक प्रेजेंटेबल, इट डजंट लुक प्रेजेंटेबल एट ऑल। सो इसको एक लॉ बनने से आप रोक सकते हैं अगर आपने खुद से साफ सफाई करना शुरू। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इन दिस particular thing, particular series या particular chapter is about some were unpopular and some were controversial laws। कुछ ऐसे भी लॉज थे जिनको सुन के अनसुना कर दिया गया, जिसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और कुछ लॉज ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रोवर्सीज फैला दी थी भैया, एकदम मार काट जैसा सीन हो गया था। Sometimes the parliament passes laws that turn out to be very popular, popular. Sometimes the law can be constitutionally valid and legal। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो एकदम सही है, एकदम सच है और वो लीगल होना चाहिए। बट इट कैन कंटिन्यू टू बी पॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इट्स अनफेयर एंड हार्मफुल। सपोज ना, अभी हमारे पास एक सेक्शन अपॉइंट हुआ था विच इज 377। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक। आपको जिसके साथ रहना है आप रह सकते हो, यू हैव द राइट टू चूज बेसिकली। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेक्शन पर्टिकुलरली, बट आई एम जस्ट सेइंग अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ये सेक्शन लीगलाइज कर दिया पार्लियामेंट ने। ठीक है, इसको सॉरी, इसको जुडिशरी ने बोल दिया कि हाँ ये है, ये लॉ है, आज के बाद से इसके इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई अगर देखता भी है तो आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। देन बट दे वर नॉट दैट पॉपुलर, उसको ना बहुत दबा दिया गया बिकॉज द पीपल, द सोसाइटी, दे थॉट दैट कि इसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल ऑन दी सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको सेक्शन के बारे में पढ़ना है तो मैं इसके बारे में आपको, जब मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, जब मेरी लाइव क्लास होगी, तब आप मेरे से ज़रूर ये सवाल पूछें, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी, बट नॉट ऑन अ रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, सो यस, people might criticize such laws, people had criticized this kind of laws। ठीक है, and hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV and TV news channels। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws। ठीक है ना? In a democracy like us, citizens can express their unwillingness to accept such repressive laws framed by the parliament। So they are not going to accept that law। जैसे कि बहुत पॉपुलर है, अभी करंट है एकदम, वो है फार्मर लॉ, जो अभी बन के आ जाएगा, ये लॉ बनने वाला है। अभी वो सिर्फ एक बिल है। ठीक है, उस पे अब उसको लॉ बनाने के लिए राज्यसभा में यस होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस टाइम पे वो यस के लिए people are not ready, they are raising their voices, they are writing it in newspaper, they are holding TV news channel, they are holding meetings, they are also holding some riots, है ना? ILP, sorry, CAA, which stands for सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो एक एक्ट बन चुका है। पीपल आर स्टिल holding against it, people are saying that we are not going to accept it because it is highly unacceptable। even if it is passed by the parliament, still we are not going to follow it। so people are definitely doing what they are saying कि हम नहीं मानने वाले। so they are showing their unwillingness to accept such repressive laws that is so harmful or unfair to the people। ठीक है, सो दे मैं नहीं कह रही कि ये गलत है या सही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पीपल दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड सच लॉज इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड इट इज अनफेयर टू द अदर पीपल। ठीक है,
when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change it. तो ये ना जो ये प्रेशर ग्रुप्स जो करते हैं, आई एम नॉट सेइंग प्रेशर सिटी, हाँ, आई एम सेइंग जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली करते क्या है, दीज पीपल दे एक्चुअली डू व्हाट, वो लोग प्रेशराइज करते रहते हैं, ठीक है, वो प्रेशर करते रहेंगे, हमेशा स्ट्राइक पे रहेंगे, या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ेंगे, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते रहेंगे. दे आर कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइजिंग कि ये चीज गलत है, इसको चेंज करा जाए, ये चीज गलत है, इसको चेंज करा जाए. देन द पार्लियामेंट कम्स इनटू दैट प्रेशर टू चेंज दिस, मतलब वो चेंज करने के प्रेशर में जरूर आ जाते हैं, ठीक है. इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड्स द अदर, इट विल बी वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. मान लो कि कोई एक ऐसा लॉ बनाया है जिससे सिर्फ एक ग्रुप, एक वर्ग ऑफ द वन वर्ग ऑफ द सोसाइटी इज बीइंग फेवर्ड एंड इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट सीइंग द अदर ग्रुप, तब वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है एंड दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, दैट लीड्स टू अ क्लैश, मतलब बूम होते रहेगा. पीपल एंड द गवर्नमेंट आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. मतलब क्या है, देखो अभी जो ये हमारा जो बिल आया था, फार्मर बिल जो आया हुआ है, उसमें क्या हुआ है, एक ग्रुप को, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, एंड जिसके वजह से लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये बिल पास किया गया, क्योंकि हियर वी आर गोइंग टू गेट मिडिलमैन, है ना, यहाँ पे आपको मिडिलमैन की जरूरत होगी टू सेल योर गुड्स. बट द पीपल दे आर लाइक कि हम नहीं करना चाहते हैं ये चीज, एंड दैट इज वाई द फार्मर्स दे आर सेइंग कि हमें फिर पैसे बहुत कम मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दे आर राइट और दे आर रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि दे फील सो कि उनको पैसे कम मिलेंगे. जो पैसे उनको मिलते थे पहले, जो मिनिमम सप्लाई प्राइस थी, वो जो मिलनी थी वो और कम मिलेगी, दे फील सो. तो उससे क्या हुआ कि अगर अकॉर्डिंग टू देम दिस बिल इज जस्ट फेवरिंग वन पार्टी, वन मिडिलमैन या जो बिजनेसमैन है उनके तरफ ज्यादा फेवर कर रहा है, रादर देन फेवरिंग दी farmers. So that is leading to the conflict. I'm not saying कि कौन सा पार्लियामेंट सही है या फार्मर सही है. आई एम नो बडी टू जज, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल्सो. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक ग्रुप पार्लियामेंट के साथ इसलिए लड़ रहा है बिकॉज दे फील इट कि जो ये लॉ है ये बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है रादर देन गिविंग प्रॉफिट्स टू दी फार्मर्स, ठीक है. सो द कोर्ट हैज द अल्टीमेट पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर one of the fundamental rights given in the constitution is, if you feel that your other rights are being violated, they are being neglected by the people or any particular group of people, या कोई political party या कोई एक politician से अगर कोई ignore कर रहा है आपकी वो constitutional rights को, आपसे छीन रहा है, आपके fundamental rights को ignore कर रहा है, then you have the right to move to court, and court has the right to say कि क्या ये सही है या नहीं. So ultimately the power comes, भले ही पार्लियामेंट लॉ बनाए, ठीक है, भले ही पार्लियामेंट लॉ बनाए, पार्लियामेंट is favoring some party, but the constitution says that the court has the ultimate power to modify it or either to cancel that law. ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट कह दे कि भैया ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है. क्या पता जो लॉ, जो एक्ट बनाया गया था 2005 में फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, तो वो चीज उसके आगे अगर वो दूसरा ग्रुप अगर बोलता कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत 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 है, तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लास्ट में क्या करना पड़ता, वो दे हैड टू मूव टू दी कोर्ट की तरफ जाते, तो कोर्ट फिर अल्टीमेटली डिसाइड करता कि ये चीज गलत है या नहीं. अगर उसने भी बोल दिया कि हाँ ये चीज सही है, ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ है,
तो भैया इसको फिर एक लॉ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने उस लॉ को तोड़ा तो डेफिनेटली आप ट्रायल पे जाने वाले हो, आप जाओगे जेल। वो चीज़ फिर वहाँ पे आ जाती है। तो मतलब इतनी फ्रीडम है हमें। तो जब हमारा जब अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो अल्टीमेट लॉ बनाता है, लॉ को फॉलो करता है, अगर वही उस चीज़ को मना कर रहा है कि हाँ, ये आप जो कर रही हैं ये गलत है, या ये जो आप कर रहे हैं वो सही है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू आर नोबडी टू रेज़ योर वॉइस। ठीक है? सो इन इंडिया पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। अगर कुछ ऐसे गलत उल्टे फुलटे लॉज बन जाए जिसका कोई सर पैर नहीं है, एंड इट इज अफेक्टिंग द कॉमन पीपल और द पीपल हु आर बीइंग हाईली अफेक्टेड, then they have the right to protest. So this right to protest is basically saying the, ये राइट टू प्रोटेस्ट कहाँ से आया? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट टू एक्सप्रेस है, या राइट टू स्पीच है, जहाँ पे आप खुले में आकर, बिकॉज यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर कुछ भी आपको ऐसा गलत लॉ लगता है तो। ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक माई टूडेज क्लास वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आपको एक्चुअली में बताता है कि लॉज किस तरीके से आए हैं, उनको कैसे फॉलो किया गया है, कैसे नए लॉज और बनाए गए, और इन फ्यूचर ऑल्सो वी होप कि और भी लॉज ऐसे आए जिससे हर सेक्शन ऑफ द ग्रुप, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज बीइंग प्रोटेक्टेड, is being safeguarded. If you like my video, please give it a thumbs up, share and subscribe. That's all from my side. I am signing off. This is Neha Kumari, and don't forget to subscribe the Unacademy app, and while subscribing use my code, which is KUMARI, to get a 10% off on your pricing. Thank you so much. Take care. Bye bye.